میں کیوں کروں, کیوں میں اپنی شخصیت کی تعمیر کی فکر کیوں کروں, بتائیے. دا وائی آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. یعنی بلب اگر موجود ہے نا کمرے میں, فٹنگ بھی ساری پوری ہوئی ہے, لیکن بلب سے روشنی کب ہوگی؟ جب ہم بٹن دبائیں گے. جب تک بٹن نہیں دبے گا, ساری فٹنگز ہونے کے باوجود بلب روشنی نہیں دے گا. تو جب تک میں اپنے ذہن میں کیوں کا سوال پیدا نہیں کروں گی نا, میری شخصیت میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اور زندگی میں کسی بھی اسٹیج پر میں یہ مطمئن نہیں ہو سکتی کہ اب میں بالکل پرفیکٹ ہو گئی. بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہے گی, لیکن بہتری کی گنجائش کا رستہ کس سوال سے نکلے گا؟ کیوں کریں. بتائیے کیوں کریں, کیوں یہ فکر کریں. جی جناب. سب سے اہم بات میں نے محسوس کی ہے پچھلے 2.5-3 سال میں کہ جب ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں, 20-22 سال کی شادی ہو جاتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, ہمیں ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ہم ایز اے ماں بھی پرفیکٹ ہے, ایز اے بہو بھی, ایز اے سسٹر بھی, بیٹی بھی, ہر طرح پرفیکٹ ہے. اور یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. پھر ہماری ساری چیز یہ ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, اور اس میں جو بھی بیٹھتی ہیں خواتین اور ہمارے ڈسکشن چلتے ہیں اس میں ہر خاتون کا ایک ہی جملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں پرفیکٹ. تو اس چیز نے ہمیں یہاں پہنچایا کہ آج کی جنریشن دیکھ کے کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کو کتنا پرفیکٹلی جواب دیتا ہے, اس کا میں نے بگاڑ یہ دیکھا کہ وہ بالکل بات میں آپ کی کاٹ رہی ہوں کیونکہ وقت کم ہے. بات آپ کی صحیح ہوگی, لیکن ہمارے سوال سے ریلیٹ نہیں کریں نا, کیوں کریں. اس لیے تاکہ وہ لوگ سب سسٹم صحیح رہے ہم لوگوں کا. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کا جواب ہو گیا کہ سسٹم صحیح رکھنے کے لیے. اور کوئی جواب؟ ہم اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اپنی شخصیت تعمیر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس ماحول میں بھی رہ رہے ہیں تاکہ اس کے مطلب لیول پہ آ سکیں اور اپنے آپ کو نمایاں کر سکیں. یہ بھی ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے تو ہم کو یہ ثابت کرنا چاہیے. تو ثابت ہم اسی طرح کریں گے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں کہاں خامی ہے, کیا برائی ہے, وہ ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی صحیح ہے. اور کوئی بات؟ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے بات گروتھ کی ہوئی کہ ہمارا جو قد کاٹ ہے سمجھیں اس میں تو ایک بڑھوتری ہوتی ہے, عمر بھی میری اور آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن جو ہے جو پرسنالٹی ہے یا جو ہمارا رویہ ہے اس میں جو بہتری کی گنجائش ہے جب وہ مستقل ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی تعمیر بھی ضروری ہے کہ اس کو کچھ مواد دینا اور اس کے لیے کچھ اقدامات کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ شخصیت تو وہیں کی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی, چاہے بے شک میری اور آپ کی عمر کتنی بھی ہوتی چلی جائے. اور اگر جس پلیٹ فارم پہ بھی ہم ہیں, کبھی جاب پہ ہے, کبھی گھر پہ ماں ہے, بہن ہے, تو ہر پلیٹ فارم پہ ہم صحیح طریقے سے وہ کام انجام دے سکتے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور اگر ہم اپنے اس کیوں کو ریلیٹ کریں جو میرے پیچھے آیت کا ترجمہ بھی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کی انویٹیشن دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوڑ کر چلو, ہے نا, دوڑ کر چلو. کہاں؟ اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے نا. اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف ہمیں دوڑ کر چلنا ہے. اور دوڑ کر چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اور اس دنیا میں جس نے کلمہ پڑھ لیا, جس نے نہیں پڑھا اس کی تو اپنی چوائس تھی, لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ ایک کمپٹیشن میں شامل ہو گیا. وہ کمپٹیشن کیا ہے کہ کون دنیا کو بہترین ان پٹ دے رہا ہے, کون اپنے پوٹینشیلز کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے پر استعمال کر رہا ہے. کس کی پاور اللہ نے 1000 واٹ رکھی ہے, وہ 1000 واٹ تک کون ہے جو پہنچتا ہے اور دنیا میں کچھ ایسا کر کے چلا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے. تو اس وجہ سے دراصل ہمیں اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے تاکہ ہم اس دوڑ میں مقابلے کو جیتنے والے بن سکیں اور اس جنت میں داخلے کے قابل اپنے آپ کو بنا سکیں جس میں جانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت بھی دے رہا ہے اور اس نے رکھی ہی متقین کے لیے ہے. جی والی بات جو ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اب میں پرفیکٹ ناؤ آئی ایم پرفیکٹ, اور مجھے کسی امپروومنٹ کی فردر ضرورت نہیں ہے, کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, کسی بات کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی لیکچر کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں جو ہوں میں پرفیکٹ ہوں, مجھ سے تو بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا. یہی سوچ جو ہے نا اس کو اندھیرے کوئے میں گرا دیں. یہ بات تو ابھی ہوئی بھی ہے نا, یہ تو ڈسکس بھی ہوئی ہے. وہ شخص جس نے اپنے نفس کا ٹیسٹ کیا, تو جب تسکیے کے پروسیس میں آتے ہیں جس سے پہلے جو چرچا قرآن میں جس سے ریلیٹڈ ہے, تو پھر ہر شخص کے لیے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں, اور پھر
मतलब सही डायरेक्शन, एक तो ना एफर्ट करें, दूसरे ये सही डायरेक्शन जो है वो सामने हमारे जो लगा ये सही। आपका क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ ऐसा तो कोई नहीं सोचता, मेरा ख्याल है हमें से कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं कह रही हूँ कि हमारे बारे में बात हो ना वर्कशॉप में, ये जब बात आती है तो हमें तसल्ली होने लगती है कि हाँ वाकई हम ऐसे तो नहीं है, लेकिन हम जैसे हैं उस पर बात नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम उसी पे इंशाल्लाह बात करेंगे आगे जब डायमेंशंस आएंगे। ट्री ग्रोथ अप्रोच पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम आम की गुठली जमीन में बोएं और सेब का दरख्त निकल आए? इम्पॉसिबल है ना, नहीं होता। तो हमारे जो भी बिलीव्स हैं, हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कहाँ होते हैं? सारे हमारे जिस्म के किस हिस्से में मौजूद हैं? दिल में मौजूद है। तो दिल से इब्तिदा होती है। दिल में जो भी चीज होगी ना, आपके जो एम्बिशंस होंगे, आपकी जो ख्वाहिशात होंगी, आपकी जो तरजीहात होंगी, उन सब से दरअसल आपकी पर्सनैलिटी मुतय्यन होगी। और अगर बीज की ही मिसाल पे गौर करें ना, कि जो बीज जितना ज्यादा अच्छा होता है उसका दरख्त कैसा बनेगा? उतना ही अच्छा बनेगा, उतने ही उसकी जड़ें मजबूत होंगी, उतना ही उसकी शाखों में फैलाव होगा, उतना ही उसके फल मीठे होंगे, या मतलब जायके में अपनी मिसाल आप होंगे। तो जो साइंसदान सारे वक्त तहकीक करते रहते हैं वो किस चीज की? कि मेयारी से मेयारी बीज तैयार किया जाए, क्योंकि बीज पर ही दरअसल दरख्त का इंहिसार है। तो मेरी और आपकी शख्सियत का सारा इंहिसार किस पर है? दिल पर। और दिल में क्या मौजूद है? हमारा नस्बुलैन मौजूद है, हमारी ख्वाहिशात मौजूद हैं, हमारी तरजीहात मौजूद हैं। नस्बुलैन किस चीज का नाम है? थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज तो नहीं है, एम कह लें इसको, एम्बिशन कह लें इसको, जिंदगी का मकसद। ठीक है, ठीक है। तो हमारे जिंदगी का मकसद बहैसियत मुसलमान अगर कोई पूछे तो वो तो हम फटाफट बता देंगे, लेकिन मकसद नजर कहाँ आता है जी? अमल में नजर आता है। तो आप खुद जज करें, यानी हम में से हर एक जज करे कि अगर हमारी जिंदगी का रूटीन वर्क कोई देखे और हमारी सारी तरजीहात देखे, हमारी ख्वाहिशात देखे, क्या वो हमारे मकसद को रिफ्लेक्ट कर रही हैं जो हमें दिया है, जो डिवाइन एम्बिशन है, जो डिवाइन एम है? और अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम ये देखें कि मजीद हम क्या कर सकते हैं। और अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो फिर हम सोचें कि अमली हमारा नस्बुलैन और हमारी विशेष और हमारी तरजीहात क्या हैं, उनको दोबारा हम उस म्यार पे ले आए। इसलिए कि दिल जो है ना वो शख्सियत का मरकज है। यानी हम एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरअसल हमें कोशिश कहाँ करनी चाहिए कि हम ये देखें कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है। बिलीफ तो है कि हम सब ने कलमा पढ़ा हुआ है, बिलीफ के लिहाज से तो हम सब एक हैं, लेकिन उस बिलीफ के बाद उस बिलीफ की गहराई कितनी है और वो हमारे जहन में उसने जड़ कितनी पकड़ी है, हमें याद कितना रहता है और हमारे आमाल से रिफ्लेक्ट कितनी हो रही है, इस पर हमें थोड़ा सा गौर करना होगा। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं जिग्सा पजल अप्रोच। आप लोगों ने अक्सर पजल बच्चे बनाते भी हैं, हमने भी कभी खुद बनाए होंगे। जहरा अगर बाहर जो लोग हैं वो भी अंदर आ जाए, या दरवाजा खोल दो, बाहर हमारी चूंकि आवाज नहीं जा रही, वो लोग कामों की वजह से शरीक नहीं हो पा रहे। अच्छा, जिग्सा पजल में क्या होता है? आगे कर दे हरियो। जिग्सा पजल, पजल कैसे बनाते हैं? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, तो कम मुकम्मल होता है वो पैसे फिट करते हैं कि वो उसका शेप बन जाए, यानी जो भी चीज है पिक्चर वो वाजे हो जाए। तो अगर हम कोई उसका एक टुकड़ा सही जगह ना लगाएं या ना ही लगाएं तो वो पूरा हो जाएगा पजल, शक्ल वाजे नहीं हो सकेगी ना, पजल पूरा नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह हमारी शख्सियत भी जो है वो कुछ डायमेंशंस पर मुश्तमिल है। तो हमारी शख्सियत का हुस्न उसी वक्त वाजे होगा जब हम ये सारे पजल्स सही जगह पर सही अंदाज में फिट करेंगे। अगर हम किसी एक डायमेंशन पर बहुत तवज्जो दें और दूसरे डायमेंशन को फोकस ना करें तो हमारी शख्सियत उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं बन सकेगी। उस हिस्से में हमें डेवलपमेंट की जरूरत रहेगी। वो डायमेंशंस कौन से हैं? वो आपके सामने हैं। स्पिरिचुअल है, फिजिकल है, सोशल है, मेंटल, या जिसे आप कह लें इंटेलेक्चुअल। क्या समझ में आ रहा है इन अल्फाज से? थोड़ा सा कोई डिफाइन कर दे तो मेरा
अभी और कर रही हैं, चलो थोड़ी देर में आप नहीं, मैं हाँ actually, बहुत ही तर्क बात आपसे करती है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। चलो उसको थोड़ा सा नरम कर लें फिर कर लीजिएगा। चलिए कोई और बताए डायमेंशंस को बातें करें। आयशा हम तो आप क्या कह रही थी? डायमेंशन ये है कि एक इंसान सिर्फ एक इंसान है, इंसान की हैसियत से उसके कितने पहलू हैं, उसकी एक शख्सियत है जो ज़ाहिरी जो हमें नजर आती है, वो कैसा लिबास पहनता है, क्या कलर उसको ज्यादा पसंद है, वो जो ज़ाहिरी उसको नजर देखने में आता है। मुझे जब वो बोलता है बात करता है तो पता चलता है कि उसकी जहन कैसा है, सोच कैसी है। एक वो शख्स भी जो जाहिर है उसकी बोलने में, और वो शख्स जो पढ़ा लिखा है उसकी बोलने में यकीनन फर्क है कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं, दोनों अलग अंदाज में करें तो उसका सोशलाइजेशन तो सोशली कैसा बिहेव है। ये सब मेंटल बिहेवियर, मेंटल नहीं है। आप कोई भी चीज को, एक पिक्चर को देख रहे हैं, दो मुख्तलिफ जहनी सोच रखने वालों का एक पिक्चर दिखाई जाएगी, दो चीज पे अलग अलग तरह करें तो उनकी मेंटल थिंकिंग डेवलपमेंट पता चलेगी। तीसरे चौथा स्पिरिचुअल है कि वो उसको जो है ना अल्लाह ताला से कितना, अल्लाह ताला के मुतालिक, दीन के मुतालिक या अपनी जिंदगी की इब्तिदा, जिंदगी के इंतहा के जो सारे मामला हैं किस तरह उसको समझता है, किस तरह दुनिया में उसको लेके चलता है, ये सारे जो शख्सियत के पहलू इन सबको मिलाकर एक अच्छी मुकम्मल शख्सियत बन सकती है। हाँ, यानी ऐसा होता है ना, हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो हमें लगता है बज़ाहिर उनकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है ना, और वो सोशल भी बहुत हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है, उनके बिलीव्स में कहीं कमी है, तो वो उनकी शख्सियत का एक नमूना नामुकम्मल रहा। या अगर उनके बिलीव्स भी ठीक हैं और वो स्पिरिचुअल भी तवज्जो देते हैं और मैनेजमेंट भी उनकी अच्छी है, लेकिन अगर उनके अंदर फिजिकल वाली अप्रोच नहीं है, कमजोर है, सेहत खराब है, बहुत सारी चीजों में हिस्सा ही नहीं ले पाते, तो वो भी उनकी शख्सियत का फिर एक गोशा तिश्ना रह जाता है। ये शख्स बाकी चीजों पर बहुत तवज्जो दे रहा है, लेकिन उसकी जज्बात नहीं है, इमोशंस नहीं है। कोई शख्स किसी मुश्किल में है, वो उसके साथ शेयर नहीं कर सकता, उसकी मुश्किल दूर नहीं कर सकता, हालांकि वो मैनेजमेंट में मास्टर्स किया हुआ है, तो वो भी उसकी शख्सियत मुकम्मल नहीं हुई। यानी जिस भी डायमेंशन को हम छोड़ देंगे, हमारी शख्सियत वैसी नहीं बन सकेगी कि जैसी दरअसल होनी चाहिए। तो हमें इन चारों ही डायमेंशंस पर यकसा तौर पर तवज्जो देनी होगी। इम्तिहान में 4 सवाल हों, चारों के इक्वल नंबर हो, तो आप 3 बहुत अच्छे भी कर लें, लेकिन एक छोड़ेंगे तो नुकसान तो पड़ेगा, परसेंटेज तो गिरेगी। तो इसी तरह चारों एस्पेक्ट पर हमें बात करने की जरूरत है, हमें अपने आप को जज करने की जरूरत है, और जहां हम थोड़ा सा कम देखें उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल पर हम पहले आ जाते हैं। अच्छा, फिजिकल सेल्फ में क्या आता है? आप लोगों की भी समझ आता होगा, कुछ ही तस्वीरें भी वाज़ेह करेंगी। जिस्म की बेहतरी से मुताल्लिक कोई हदीस, कोई ऐसी चीज है जो हमें मोटिवेट करती हो कि हमें अब फिजिकल एस्पेक्ट पे भी अपनी तवज्जो देनी है? सफाई निस्फ़ ईमान है, और कमजोर मोमिन से ताकतवर मोमिन बेहतर है। हाँ, ये बात हदीस में है ना, तो ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। क्यों बेहतर है? अच्छा सोच सकता है, सही तरीके से हर चीज का काम, ज़ाहिर सेहत नहीं है तो आप वही काम भी सही, मतलब ये इबादत भी आप सही तरीके से, ज़हनी जिस्मानी सारी सेहत वही एक अच्छा इंसान। सभी लोग जानते हैं कि इस्लाम की जितनी टोटल एजुकेशन है जिसमें इंसान की फिजिकल और मेंटल हेल्थ की टोटल नॉलेज जमा हो गई है। बल्कि उस दिन मुझे वो हदीस पढ़ के बहुत खुशी और हैरत हुई थी कि इसमें नबी करीम साहब से फरमाया कि तुम अपनी औरतों को ज्यादा पैदल चलाया। मुझे लगा कि हम लोग को किसी चीज में चलने की जरूरत है, लेकिन वाकई फैक्ट है। और डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब इसका जो डाइटिशियन जो कुछ बता रहे हैं, साहबियात को हुक्म दिया, मातुल मोमिनी को हुक्म दिया कि जब तुम आटा भूनने लगो तो उसमें एक मुट्ठी जौ का आटा मिला रहे हो। तो रिसर्च से सब कुछ कहेंगे ना, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये सब कुछ बहुत डिटेल में बताते हैं। और देखिए पहली बात ये थी कि पहला खवातीन पैदल कितना चलती थी, पहले ट्रीटमेंट सेंटर का कोई वजूद नहीं था, कि हर काम के लिए जैसे सब्जी भी लेने जानी है, रोज भी है, तो हर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना तो फिट रहेगी थी। अब जितना मशीनों पे आती है, मशीनों की लाइफ हो गई। आप देखें गली गली स्विमिंग सेंटर्स है, योगा क्लासेस है, एरोबिक्स क्या है, सिर्फ आपको फिट करने के लिए ना, तो वो चीजें आपने छोड़ दी, अपनी जिंदगी की जो रूटीन है
اور ہمیں پہلے کے علاوہ آج بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ گاؤں میں جو عورت پیدل چل کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا رہی ہے اس کی اور ہماری کتنی فزیکلی اس میں فرق ہے کہ وہ پیدل بھی چل رہی ہے، جو کا آٹا بھی کھا رہی ہے، گندم بھی ویسا کھا رہی ہے جیسے کہ اردو میں ہمارے یہاں اگر وہ بالکل فائن پسا بنا اس میں وائٹ آٹا نہ ملا ہوا تو ہم لوگوں کی نہیں ہوتی. تو ابھی بھی وہ ساری چیزیں میں گاؤں میں نظر آ رہی ہیں. صحیح بات ہے. یعنی اگر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اگر اسی والی حدیث نیت میں ہماری یہ ہو نا کہ ہمیں اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا ہے، ہمیں دنیا کے لحاظ سے بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم نیت